ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೌನವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಎಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರೆಗೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಆಶಾ ಭಂಗ ಪಡಿಸಬೇಡ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. ನೀನು ಒಪ್ಪುವ ದಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸು. ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು. ಹಗಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯದೋಳು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ ಬಳಿ ಬಂದೆವು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸ ಬಂದೆವು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೂಗುತ್ತಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವೆಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕರ್ತನೆ, ನಾವೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಲಾಲಿಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ದಿವಸಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಮುಂಬೈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾರೋಗದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿಂತಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನೇ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದೆ. ನೀನೇ ನಮಗೆ ಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಶಾಭಂಗ ಪಡಿಸಬೇಡ ಕರ್ತನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ. ಪ್ರಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡು. ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಯವನಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಚಿಂತೆ, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದೆ, ನಡೆಸು. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಂದಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ.
ಕರ್ತನೆ, ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದ್ವು ಕರ್ತನೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾರೋಗದಿಂದ, ಈ ಒಂದು COVID-19 ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರಿಯಾದಂತ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀನು ಈ ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಆತುಟಿಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಒಂದು COVID-19 ಮಹಾರೋಗದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ, ಈ ಒಂದು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರ್ತನೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯಗಳುಂಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಬೆಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತ ದೇವರು ನೀನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು. ಕರ್ತನೆ, ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಈ ದಿವಸ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 34:19 ವಚನ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 34:19 ವಚನ. ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ಯೆಹೋವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ಯೆಹೋವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಶೆಪಟ್ಟು ಕುಂದಿ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದನು, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಜೀವಿಸುವುದು ಏನು ಲಾಭವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಹೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದನಂತೆ. ಹೋಗಿರುವಾಗ, ಆತನು ಗುಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುವಾಗ साइंटिस्ट निराश होकर एक पहाड़ के ऊपर जाकर आत्महत्या करने के लिए गए। जैसे आत्महत्या करने के लिए नीचे कूद ही रहे थे, उसी समय पर जो है उनको एक विचार आया कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे आत्महत्या नहीं करना है। और तुरंत वो परमेश्वर को पुकारता है, कहता है कि परमेश्वर मैं तो गिरने वाला हूँ, लेकिन तू मुझे बचा ले, तू मुझे बचा ले। जैसे ही वो गिरता है, वो उसके मन में एक ख्याल आता है कि मुझे बचा लेना है। परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर तू मुझे बचा ले। और ये कहता है वहाँ पर, बचा ले कहने के बदले ये कहता है कि तू ग्रेविटी को रोक दे। ग्रेविटेशनल फोर्स हम सभी जानते हैं, पृथ्वी की ओर से खींचता है। कहता है कि उसे रोक दे ताकि मैं अपने आप को बचा लूँ। लेकिन इस तरह से हुआ कि वो बच तो गया, पहाड़ के ऊपर से गिरकर एक पेड़ पे लटक कर उनके पैर और उनके हाथ फ्रैक्चर हो गए और बच गया।
लेकिन प्रिय लोगों, आज मैं इसके द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि एक साइंटिस्ट किस तरह से निराश होकर अपनी पीड़ा के अंदर परमेश्वर को पुकारता है कि तो मुझे बचा ले। ऑफ कोर्स बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर एडवाइस देता है कि तू ग्रेविटी को स्टॉप कर। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर स्टॉप किया होता 5 मिनट के लिए तो क्या हुआ होता? सारे लोग जो हैं आसमान में उड़ गए होते, चीज़ें जो ऊपर फेंकी जाती ऊपर ही रह जाती, तो एक 5 मिनट में के लिए पूरा अस्त व्यस्त हो जाता। प्रिय लोगों, कुछ ऐसी ही परिस्थिति आज के दिन की है। आज हम सभी विश्वासी लोग, सभी लोग जो है ये प्रश्न हम कर रहे हैं कि परमेश्वर आप कहाँ पर हैं। हम पुकार रहे हैं कि परमेश्वर इस पैंडेमिक स्थिति को आप दूर करें। लॉर्ड यू टेक आउट दिस पैंडेमिक कहकर हम पुकार रहे हैं। करोड़ों लोग जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और हम ये प्रश्न भी कर रहे हैं कि क्यों लोग जो है इतने लोग मर रहे हैं। प्रार्थना करने के बावजूद भी जो है लोग अपने जीवन के अंदर इस तरह से व्यतीत जी रहे हैं, कष्टों में जी रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं मिल रहा है, कई जगह पर जो है लोगों की कई परेशानियां हैं कहकर हम देखते हैं। और सरकार भी जो है अपना पूरा प्रयास करने के बावजूद भी जो है कई चीज़ों को हम काबू में नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी कौन हमें मदद करेगा? केवल परमेश्वर ही मदद करेगा। और आज हम सभी लोग जो है परमेश्वर को पुकार रहे हैं, बट हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर को जब पुकारते समय पर इसके स्थिति में आकर प्रभु आप ये कीजिए कहकर जब हम कहते हैं, वी डू नॉट नो हाउ गॉड विल से, बट आई फील, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है अपने तरीके से, अपने समय के अनुसार, अपने हिसाब से जो है लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है और लोगों को बचाता है। जैसे वो साइंटिस्ट को उन्होंने बचाया, ठीक उसी तरह से आज अगर हम परिस्थितियों को देखकर ये कहते हैं कि कहेंगे कि पैंडेमिक परिस्थिति क्यों आई है, क्या ये एक महामारी, एक बीमारी जो है लोगों के ऊपर एक न्याय के रूप में आई है? क्या दंड के रूप में आई है? क्या परमेश्वर हम सभी से नाराज है क्या? इस तरह से कई प्रश्न जो है हमारे अंदर आते हैं, और इन सभी बातों के लिए मैं यही कहूँगा कि एक रहस्यमय है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड। परमेश्वर के मन को और विचार को हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर जब जब इस तरह की दुर्घटना या फिर इस तरह की बीमारियां, विपत्तियां, इस तरह की महामारी जब कभी आई है तो क्या हुआ है? व्हाट हैज हैपेंड? कैसा हुआ है? हम 2-3 इंसिडेंट्स देखेंगे जहां पर बाइबल के अंदर जब परमेश्वर जो है इस तरह की परिस्थितियों को लेकर आया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सोडस चैप्टर 7 टू चैप्टर 11 के अंदर, निर्गमन उसके 7वें अध्याय से 11वें अध्याय के अंदर जब हम पाते हैं, यहाँ पर सारे इजरायली जो है एक ऐगुप्त देश में, मिस्र देश के अंदर गुलामी में जी रहे थे। उस समय वे लोग सभी लोग पीड़ित होकर परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर ने जो है उनके पुकार को सुनकर एक मोसेस लीडर को उनको भेजा और उनको कहा कि तुम जाओ, फिरौन राजा से कहे कि सारे इस्राएलियों को छोड़ दे। इस्राएलियों को छोड़ने के लिए जब कहा गया तो वहाँ का जो राजा था, वो राजा जो है उसका मन कठोर हो गया और कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इन लोगों को जाने नहीं दूंगा। और इसी वजह से जो है जब उनका मन कठोर हो गया, जब परमेश्वर ने कहा था इसकी बात को नहीं माना, तब परमेश्वर जो है उनके लाइफ के अंदर, मिस्र देश के अंदर जो है 10 पीड़ाओं को, 10 विपत्तियों को उन्होंने वहां पर लेकर आया करके देखते हैं। सारे विपत्तियों के बारे में हम नहीं देखेंगे, बट देखते हैं कि 10 विपत्तियों को परमेश्वर ने वहां पर लेकर आया। और उन सारे विपत्तियों के बाद में आखिरी में जो है एक विपत्ति था, वो है पहला जो बच्चे को मार देना। और परमेश्वर जो है यहाँ पर ये दंड, ये सजा जो है उनके जीवन में देकर उन लोगों को छुड़ा लेता है करके हम देखते हैं। दिस इज वन काइंड ऑफ प्लेग, या फिर एक तरह की विपत्ति यहाँ पर लाया परमेश्वर ने एक दंड के रूप में, क्योंकि फिरौन राजा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। और एक जगह पर हम देखते हैं जहाँ पर 70,000 लोग जो है मारे गए। कहाँ पर? दूसरा सैमुएल उसका 24वां अध्याय 15वें वचन के अंदर हम पाते हैं, जहां पर दाऊद राजा जो है एक सेंसस यानी कि जनगणना करना चाहता है इजरायलियों की। जब परमेश्वर कहता है कि तू मत कर, ये अपने गर्व में आकर घमंड रख दिखाना चाहता था कि मैं कितना चीजें हासिल किया हूं कहकर, वो उस चीज को लेकर वो सेंसस जब करने लगा, जनगणना करने लगा, तो तब उस समय पर एक महामारी, एक विपत्ति, एक महामारी आई, और उस महामारी के कारण 70,000 लोग वहां पर मर गए। परमेश्वर के वचन के विरोध जाने के वजह से, एक व्यक्ति के वजह से उतने लोग वहां पर मारे गए करके हम देखते हैं। सो हम ये कह सकते हैं प्रिय लोगों, आज की इस महामारी को भी लेकर
कहीं ना कहीं जो है परमेश्वर के आज्ञाओं को हम नहीं माने हैं। अगर इट गोज बैक टू द ओरिजिनल सिन, जो पाप हमने किए हैं, इन पाप की वजह से बहुत सारे नेग्लिजेंस है, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हम छोड़ दिए हैं। इस वजह से हो सकता है कि परमेश्वर इस महामारी को हमारे बीच में लेकर आया है। लेकिन इस महामारी के बीचों बीच में भी जो है और भी कुछ इंस्टेंसेस है, और भी कुछ बातें हैं जो मैं बाइबल से बताना चाहूँगा। नॉट ओनली दिस टू थ्री इंसिडेंट, बट ऑल्सो देयर आर सम इंडिविजुअल इंसिडेंट। इंडिविजुअल के बारे में हम देखते हैं, जहाँ पर अय्यूब के जीवन के बारे में जब हम देखते हैं, अय्यूब के जीवन के बारे में, अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, फिर भी उनके जीवन में बहुत सारे परीक्षाएं लेकर आया। परीक्षाएं लेकर आने के लिए किसने इजाजत दी? शैतान आकर अय्यूब के जीवन की और विश्वास की परीक्षा लेता है। अय्यूब सब कुछ खो दिया, अय्यूब को पता नहीं है, लेकिन अय्यूब सब कुछ खो दिया है और उनकी जायदाद चली गए हैं, सब कुछ खो दिया और उनका बीमारी भी आ गया, सर से लेकर पैर तक फोड़े आ गए हैं। हम सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन अय्यूब की प्रतिक्रिया क्या थी इस महामारी, इस टेस्टिंग पीरियड के अंदर? उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने कहा कि मैं नेकड आया हूँ, यानी कि मैं जो है नंगा आया हूँ और नंगा जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ही ले लेगा, इस तरह की उनकी वाणी थी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि इस अय्यूब के जीवन में परमेश्वर जो है इन सारी परीक्षाओं को देने के बाद, शैतान इनके जीवन में परीक्षाओं देने के बाद, वो जब वहाँ से उबर कर आए, परमेश्वर ने उनको रिवार्ड किया करके देखते हैं। नॉट ओनली दिस, यहाँ पर ही नहीं बल्कि और 2-3 इंसिडेंट्स है जहाँ पर परमेश्वर इस धरती के ऊपर लेकर कुछ चीज़ों को लेकर आने के पहले उनको वार्निंग दिया गया। 40 दिन 40 रात तूफान आएगी या फिर जल प्रलय होगा कहकर नोहा ने प्रचार किया लोगों के बीच में। उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय के अंदर देखते हैं कि परमेश्वर इस दुनिया को बनाकर बहुत ही पछताया, क्योंकि लोग जो है परमेश्वर से मुड़कर अपने ही पापों में, अपने ही जीवन में, अपने ही विषय के अंदर व्यस्त हो गए। और इसी वजह से इन सारे लोगों को मिटाने के लिए जल प्रलय को लेकर आना चाहता था। सो जब जल प्रलय ला रहा था, परमेश्वर ने वार्निंग दिया कि तुम जल प्रलय लाऊंगा नोहा के द्वारा, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। फिर बाद में 40 दिन और 40 रात तक उस जल प्रलय को लेकर आए। और एक जगह इंसिडेंट, और एक इंसिडेंट हम देखते हैं जहाँ पर सोदम और गोमरा शहर को परमेश्वर ने आग से नाश किया। लेकिन उसके पहले भी जो है इस बात को अब्राम को पता चलती है, और अब्राम कहता है कि वहाँ पर अगर 5 लोग भी धर्मी रहेंगे तो क्या परमेश्वर तो उसे बचाएगा। और अंत में हम देखते हैं कि वहाँ पर 5 लोग भी धर्मी व्यक्ति नहीं थे। सो ऑल दिस इंसिडेंट्स क्या कहता है पता है? कहीं ना कहीं इस बात को जताती है कि जब कभी ऐसी पीड़ाएं, विपत्तियां या फिर बातें आती हैं, कुछ बातों को परमेश्वर हमें सिखाता है। व्हाट इट सेज, हो सकता है कि कई हम परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं माने हैं, पाप किए हैं, इसी वजह से ये सब चीज़ें आ रही है, नंबर 1। सेकेंड जो है, हो सकता है कि हम हमारे धर्मी लोगों के जीवनों के अंदर हमारे विश्वास की परख हो रही है, ये सेकेंड। तीसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर इसलिए आती है कि एक वार्निंग के रूप में, एक चेतावनी के रूप में आ रही है कि हम अपने जीवन को वापस से टटोल ले, फेर ले और परमेश्वर की ओर लेकर जाए। बट यू नो ऑल दिस इंसिडेंट्स, ये सारे इंसिडेंट्स के अंदर परमेश्वर जो है एक बात करता है। क्या कहता है पता है? ही हैज सेव्ड द राइचस पीपल। उन्होंने जो है धर्मी लोगों को बचाया है। जल प्रलय के अंदर नोहा और उनके परिवार को बचाया। सोदोम और गोमरा शहर को नाश करने से पहले लूत को और उनके परिवार को बचाया जो धर्मी थे। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो वचन मैंने अभी इसी समय पढ़ा है, भजन संहिता 34 और 19वां वचन, कि एक धर्मी जीवन के व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी विपत्तियां तो आएंगे, लेकिन परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है। परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ वचन है। तो आज हम सभी लोग, विश्वासी लोग या फिर धर्मी व्यक्ति जो है, परमेश्वर जानता है कि हम सभी लोगों को किस तरह से छुड़ाना है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 9वां वचन ये कहता है, परमेश्वर जानता है कि वो अपने धर्मियों को इन परीक्षाओं से कैसे बचाए और जो अधर्मी हैं उन लोगों को न्याय कैसे करे। सो ऑल दिस वर्सेस, ये सारे वचन जो है हम लोगों के बीच में ये बात को कहते हैं that God will never leave the righteous or forsake the righteous। परमेश्वर हम सभी धर्मी लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। तो आप कहेंगे, या ऐसे कई पास्टर्स और मिशनरीज, कई धर्मी लोग, विश्वासी लोग जो इस कोविड-19 में मर गए हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या है? मैं ये कहूँगा कि उन लोग जो है, उनके लिए एक वचन को मैं कहना चाहता हूँ। वचन क्या है पता है?
फिलिपियोस का पहला अध्याय 21वां वचन कहता है, क्या कहता है? ये पौलुस कहता है, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। मुझे जो है जीवित रहना मसीह के लिए है और मर जाना मेरे लिए लाभदायक है। प्रिय लोगों, आज जितने भी धर्मी व्यक्ति जो मर रहे हैं, मर गए हैं कोविड-19 के या फिर जो भी बीमारी से अगर मरे हैं, तो वे सभी लोगों के लिए लाभदायक है, क्योंकि मसीह के अंदर राइचस होकर के हम मरे हैं। देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ मिशनरीज के जीवन के बारे में मैं पढ़ रहा था, बहुत ही शॉर्ट में मैं पढ़ रहा था, बट यू नो व्हाट इट सेज। डेविड ब्रेनर्ड, एक बड़े मिशनरी जो अमेरिका के मिशनरी थे, अमेरिका के अंदर जो है रेड इंडियंस को वो वचन सुनाए हैं। डेविड ब्रेनर्ड का लाइफ स्टोरी जो है बहुत ही छू लेने वाली है। क्या है वो पता है? What एज ही डाइड? 29 ईयर्स, 29 साल में वे जो है ट्यूबरकुलोसिस होकर वो मर गए। बट यू नो ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम्स, इन 10 से 11 सालों के अंदर, जब बचपन से लेकर 12 सालों के अंदर जो है उन्होंने कहीं लोगों को वचन सुनाए। जब वो प्रचार किया करते, लोग जो है उनके पास आकर कहते थे कि हम कैसे यीशु मसीह को अपनाएं। सो 29 years he lived, but all he lived for Christ. But when he died, it was a gain for him. उनके लिए जो है लाभदायक था। और एक व्यक्ति के बारे में मैं पढ़ रहा था जिनका नाम है जॉन हंट। जॉन हंट जो है फिजी आइलैंड आप जानते हैं, लक्षद्वीप, यहाँ पर जाकर जो है उन्होंने वचन को सुनाया। वो और उनकी पत्नी, वहाँ के लोग जो है लोगों को यानी कि कैनिबल्स यानी कि लोगों को मार डालते थे। वैसी स्थिति के अंदर रहकर भी उन्होंने यीशु मसीह के वचन को सुनाकर वहाँ के फिजी के आइलैंड को पूर्ण रूप से जो है परमेश्वर के लिए जीता है कहकर वे भी जो है कब मर गए? एट द एज ऑफ 37 years। 37 years के अंदर वो गुजर गए। बट वॉट एवर आई वॉन्ट टू से, मैं कुछ यहाँ पर ये नहीं कहना चाहता हूँ कि पैंडेमिक सिचुएशन में जीते समय हम सभी लोगों के लिए मैं डरावनी बातें नहीं कहना चाहता हूँ, बट ये कह रहा हूँ कि आज मैं और आप जो है विश्वासी व्यक्ति जो होने के नाते आज मेरे लिए जो है ये वचन होना जरूरी है। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। पौलुस के जीवन के द्वारा जो है बहुत ही जरूरी है। रिक वारन एक परमेश्वर के सेवक है जो बहुत ही अच्छी किताबों को लिखे हैं, सेवा कर रहे हैं। रिक वारन, he says, if you are alive, there is a purpose for your life. If you are alive, there is a purpose for your life. अगर आज हम जीवितों के संख्या में हैं तो परमेश्वर एक मकसद, एक उद्देश्य रखा है आज हम सभी के लिए। इस पैंडेमिक परिस्थिति के अंदर भी हम सभी लोग जीवित है तो आज परमेश्वर का एक मकसद है। तो टुडे यू एंड आई नीड टू नो व्हाट इज दैट पर्पस इन माय लाइफ। मैं और आप जो है आज हम जीवित है तो हमें जानना है कि परमेश्वर तेरी मकसद क्या है तो मुझे जीवित रखने के लिए। कोविड-19 के इस महामारी के अंदर बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे जिंदा रखा है। व्हाट इज द पर्पस? टुडे यू एंड आई नीड टू नो व्हाट इज दैट पर्पस। पर्पस क्या है? आज अगर मैं पूछूंगा क्या है पर्पस, बहुत सारे जवान, बहुत सारे लोगों के जीवन में, पास्टर्स के, लीडर्स के, सभी के अंदर व्हाट इज द पर्पस? मेनी ऑफ अस वी डू नॉट नो आवर पर्पस। बहुत सारे लोग हमारे जीवन के अंदर हमें पर्पस नहीं पता है हमारे लाइफ की। कई लोग हम ये सोचते हैं क्या है पर्पस पता है? पैसे कमाना, एक अच्छा घर लेना, एक फ्लैट लेना, अच्छा जिंदगी जीना, यही हमारे लिए पर्पस बन चुका है। बहुत सारा संपत्ति इकट्ठा करना और एक लैविश लाइफ जीना, यही हमारे लिए पर्पस बन चुका है। जवानों के लिए ये लग रहा है कि मैं एक अच्छा करियर बना लूंगा, दैट विल बी माय पर्पस। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी शादी होने के बाद एक अच्छा परिवार हो जाएगा, दैट इज माय पर्पस। हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अपने नाम को उत्तम करूं, बना फेम पाऊं, ये सोच रहे हैं, इसीलिए उन लोग जो है मीडिया के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। फेम हैज बिकम देयर पर्पस। इफ वी हैव ऑल दिस थिंग, अगर ये सब कुछ होने के बाद भी जो है वेयर डू वी स्टैंड, कहाँ पर हम खड़े हैं? अगर एक व्यक्ति जो है व्हाट्सएप के अंदर में पढ़ते समय पर बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ गलत है, कुछ अफवाह है, कुछ चीजें हैं, बट यू नो ऑन दैट वन आई रेड, एक व्यक्ति जो है सारे पैसों को उन्होंने स्ट्रीट के ऊपर, रास्ते के ऊपर उन्होंने फेंक दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि ये पैसे जो है मेरे परिवार की जान को बचा नहीं पाए कहकर उन्होंने कहा। तो वैसे ही हो सकता है कि आज हम सब कुछ हासिल करने के बाद भी अगर हम अपने प्राण को, अपनी आत्मा को खो दे तो व्हाट इज द यूज। तो इसीलिए रिक वारन वापस से एक बार एक पंक्ति वो कहते हैं, यू आर मेड बाय गॉड एंड फॉर गॉड। लिसन टू दिस, इस बात को सुनिए। यू आर मेड बाय गॉड एंड फॉर गॉड until you understand that life will never make sense. Until you understand that
लाइफ विल नेवर मेक सेंस। यानी कि आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, परमेश्वर के लिए ही बनाए गए हैं। अगर आप इस बात को नहीं जानोगे तो आपका लाइफ में जो है सेंस नहीं होगा। सो टुडे एज क्रिश्चियन बिलीवर्स एंड एवरी वन ऑफ अस वी हैव रियलाइज्ड, बहुत सारे हम में से लोग ये जान चुके हैं कि हमारे लिए जो है जीना मसीह के लिए है और मरना हमारे लिए लाभदायक है। तो प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट। बट स्टिल आई वुड से हम में से कई लोग आज हमारे पर्पस को हम अलग अलग जगह पर खो चुके हैं। देयर आर डिफरेंट पर्पसेस वी आर हैविंग, इवन दो वी आर बिलीवर्स, इवन दो वी आर क्रिश्चियंस, वी हैव लॉस्ट अवर पर्पस। आज हम सभी लोग जो है अपने उद्देश्य को, मकसद को खो दिए हैं। देयर आर 3 ways that we have lost, 3 तरह से जो है अपने पर्पस को खो दिए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं we have become, our purposes have become self-centered purpose, self-centered purpose। आज हमारी मकसद जो है अपने जीवन के अंदर self-centered कर चुके हैं। What self-centered? यानी कि स्वार्थ के ऊपर कर चुके हैं। We want to earn, हमें कमाना है। क्या कमाना है? पैसे कमाना है मसीह के नाम पे। मसीह को अपनाए हैं तो मसीह के नाम पे हम पैसा कमाना चाहते हैं, मसीह के नाम पे हम अपने नाम को बनाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू अर्न आवर फेम इन क्राइस्ट नेम, वी वॉन्ट टू हैव द होम एंड शेल्टर इन क्राइस्ट नेम। मसीह के नाम पर ही आज हम सभी लोग अपने घर को, अपने सभी शेल्टर को, हम अपनी चीज़ों को बनाना चाहते हैं। मसीह के नाम पर ही आज हम एक पोजीशन को, एक चेयर को हम पाना चाहते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर सेल्फ सेंटर्ड। ये सारी बातें जो है स्वार्थता को प्रकट करती है। सो आवर पर्पसेस हैव बिकम सेल्फ सेंटर्ड। आज हमारे चीज़ें जो है सेल्फ सेंटर्ड हो चुकी है। वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट आवर फैमिली, वी आर थिंकिंग अबाउट ओनली दिस थिंग। सेकेंड थिंग जो है, दूसरा जो है, वी हैव अवर पर्पसलेस पर्पस। पर्पसलेस पर्पस मतलब मकसद है लेकिन बिना मकसद का, उद्देश्य है बिना उद्देश्य का। वी हैव एक्सेप्टेड क्राइस्ट, हम मसीह को अपनाए हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, बट हम क्या करना है हमें नहीं पता है। क्या हो रहा है पता है? आवर रियल पर्पस, जो मसीह के लिए जीने का एक मकसद है, इट इज रिप्लेस्ड बाय सम ऑफ द पर्पसलेस पर्पसेस। बिना मकसद वाले उद्देश्य के साथ इसे निकाल दिए हैं। क्या है? उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, एकदम वेरी सिंपल। देखिए, बाइबल रीडिंग हमारे जीवन में बहुत कम हो चुकी है। इट इज रिप्लेस्ड बाय द मोबाइल। मोबाइल के अंदर हमारा समय ज़्यादा हो चुका है। प्रेयर टाइम जो है हमारा कम हो चुका है। प्रार्थना का समय ग्रुप में मस्ती के द्वारा हम ग्रुपों के अंदर मिलना जुलना, चैटिंग करना, ये करना वो करना, उसके अंदर हमारा टाइम ज़्यादा जा रहा है। फैमिली टाइम जो है, आज परिवार के साथ बिताने वाला समय हम बाहर ज़्यादा दे रहे हैं। ऑल दिस हैज़ बीन रिप्लेस्ड। रियल मकसद जो है वो हम खो चुके हैं। और काम के कई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है, आज हम बाहर रहना चाहते हैं लेकिन चर्च के अंदर या सेवा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। दिस इज द पर्पसलेस पर्पस, बिना मकसद वाले उद्देश्य है। थर्ड जो हम देखते हैं, पर्पसफुली डोंट हैव अ पर्पस। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। दिस आर ऑल माई फ्रेम्ड स्टेटमेंट्स। मैंने रात को बैठकर एक फ्रेम किए हैं। पर्पसफुली वी डोंट वांट टू हैव अ पर्पस। हम बहुत सारे लोग जो है ये ठान लेते हैं कि हम पर्पस नहीं करना चाहते हैं, उद्देश्य रखना नहीं चाहते। मेनी बिलीवर्स, लीडर्स, दे हैव ए ग्रेट पोटेंशियल। उनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, तलांत है, समय है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजों को जो है रखकर वे अवॉइड करते हैं। कहाँ पर? मसीह के लिए जीने का, मसीह के लिए कुछ करने का, मसीह के लिए कुछ मकसदों को रखकर जीने का, इसको अवॉइड करते हैं। विद ए पर्पसफुली अवॉइड। सो टुडे जस्ट वांट टू से दिस थिंग कि आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में रहते समय पैंडेमिक के ऊपर दोष न देते हुए, लोगों के ऊपर दोष न देते हुए, परमेश्वर के ऊपर पुकारते समय परमेश्वर से प्रश्न करने के बजाय आइए हम अपने आप को परखें, अपने आप को जानेंगे कि मेरा मकसद क्या है। What is my purpose? मेरे जीवन में मकसद क्या है? So today every one of us, आज हम सभी लोगों को 2 बातें करने की जरूरत है। पहला, redefine your purpose। आप अपने उद्देश्य को, अपने मकसद को जो है redefine कीजिए। What are the purposes that is there? क्या है? कैसे करो redefine? How we have to redefine? First of all, like Paul's purpose, पॉल के जीवन को उदाहरण रखकर हम उनके मकसद के द्वारा अपने जीवन में हम मकसद को पाएंगे। व्हाट इज दिस पर्पस? उनका पर्पस क्या है? टू लिव इज, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन।
यानी कि मुझे मसीह के लिए जीना है। तो आज हम सभी लोग जीवितों की संख्या में हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह के लिए अपने जीवन को जिए। मसीह के लिए अपने जीवन को जिए मतलब क्या है? मेरा लाइफ जो है क्या मसीह के लिए प्लीजिंग है, उसके लिए भावुक है, क्या मैं उसे प्रसन्न करता हूँ? मेरा जीवन जो है क्या उसे प्रसन्न करता है? जस्ट 1 मिनट पॉज होकर के हम अपने जीवन को टटोलेंगे। 1 मिनट कि हम जब बैठे हुए जगह पर 1 मिनट अपने आंखें बंद करके जस्ट अपने लाइफ को जस्ट कलेक्ट करेंगे। कल के दिन को ही लेकर, शनिचर के दिन को ही लेकर, रिकलेक्ट योर लाइफ। आपके डेली एक्टिविटीज सुबह से लेकर जो आपने शुरू की है, प्रार्थना किया है या बाइबल रीडिंग किया है या फिर काम पे गए हैं, क्या किए हैं, जॉब आपने किस तरह से किया है, काम, घर के कामों को आपने कैसा किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने बातों में आपने कैसा चाल चलन दिया है, मोबाइल पे बात करते समय आप क्या किए हैं, आपके मन में विचार किस तरह से आए हैं, ज़्यादा समय आपने कहाँ पर बिताया है। ये सारी बातों को 1 मिनट में टटोल कर आप देखिए, क्या ये लाइफ परमेश्वर के लिए भावने वाला है? डज इट प्लीज फॉर माई क्राइस्ट? इफ इट इज सो, then you are living for Christ. If it is not so, अगर ऐसा नहीं है, so today you and I need to redefine my purpose with the Paul's purpose. आज मेरे जीवन को मुझे जो है वापस से टटोल कर सही करना है। How to do that? कैसे करना है? So reset your priorities. In order to redefine your purpose, you need to reset your priorities. अपने मकसदों को आप रिडिफाइन करने के लिए अपने लाइफ में जो प्रायोरिटीज है, प्राथमिकताएं हैं, उसको रीसेट करना है। व्हाट विल हैपन? क्या होगा? प्रायोरिटीज विल सेट योर लाइफ राइटली। आप अपने जीवन में जो प्राथमिकता देते हैं ना, वो प्राथमिकता जो है आपके जीवन को सही दिशा में लेकर आती है। सो आज प्राथमिकताएं क्या क्या है? प्राथमिकताएं मैं एक ही चीज को दूंगा, माई स्पिरिचुअल लाइफ, मेरे आत्मिक जीवन को। आज कोविड-19 के अंदर सभी लोगों के लिए ऑक्सीमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, थर्मोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्यों? ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल हम चेक करते हैं, हमारा श्वास लेवल बराबर है क्या नहीं। थर्मोमीटर से हमारे फीवर को, हमारे बुखार को हम चेक करते हैं, अगर आगे बढ़ गया तो वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस। लेकिन मैं आज और एक इंस्ट्रूमेंट देना चाहूंगा आप लोगों के लिए प्राथमिकता के अंदर। कीप अ स्पिरिचुओमीटर। This is again my word. I do not know how far it is right, but I just want to put this word. Keep a daily check with your spirituometer. What is that spirituometer? क्या है spirituometer? Spirituometer ये है कि मैं अपने आत्मिक जीवन को टटोलूं, जांचूं, मेरा आत्मिक लेवल किस जगह पर है, कम हो रहा है, come on, I need to take a precaution. तो आज मेरे लिए लाइफ में spirituometer क्या है? मेरे लिए spirituometer जो है ये बाइबल है। मेरे लिए spirituometer जो है मेरा प्रेयर लाइफ है। मेरे लिए स्पिरिचुअल मीटर क्या है? मेरा आध्यात्मिक जीवन है। ऑल दिस थिंग्स, ये तीनों चीजें जो है कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं देखता है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही देख सकता हूँ। इसलिए मेरे स्पिरिचुअल मीटर मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को चेक करेगी। सो आज प्रिय लोगों, जस्ट वन थिंग आई वांट टू से हियर इज दिस, आई वांट टू एंड माय मैसेज हियर। पैंडेमिक के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए आज हम अपने जीवन को टटोलेंगे। Let us reset our priorities, redefine our purpose. हमारे मकसद को हम वापस से ये करेंगे और कहेंगे परमेश्वर तो मेरे जीवन को आश्रित कर। उदाहरण के लिए मैं जस्ट यहाँ पर एक बात कहकर समाप्त करना चाहूँगा। डॉक्टर विलियम कैरी हमारे भारत देश के अंदर आकर उन्होंने कई भाषाओं के अंदर बाइबल को उन्होंने भाषांतर किए हैं, बाइबल कॉलेजेस की स्थापना की है, सेनेट ऑफ सेरामपुर ये यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया है और कई जगहों पर जो है उन्होंने अपने प्रभाव को डाला है। बट यू नो व्हाट वाज देयर, उनका लाइफ को अगर आप देखते हैं क्या है पता है, जैसे ही वो भारत देश में आए कुछ सालों के बाद वो अपनी पत्नी को खो दिए, कुछ सालों के बाद अपने बच्चों को खो दिए और बहुत सारा मेहनत करके प्रयास करके प्रिंटिंग प्रेस को बनाया हुआ प्रिंटिंग प्रेस आग लगकर पूरा जल गया। ये सब कुछ होने के बाद भी जो है उन्होंने अपने मकसद को नहीं खोया। मकसद यही था, टू लिव इज़ फॉर क्राइस्ट एंड टू डाई इज़ गेन, मसीह के लिए जीना। तो आज मैं और आप अपने जीवन के अंदर किसी भी परिस्थिति किस तरह से भी क्यों ना हो, ये परिस्थिति आज रहेगी, कल नहीं रहेगी। आज कोविड-19 हमारे बीच में है,
हम उनके साथ ही जीना है, लेकिन ये जीने के समय पर आज हम मसीह के लिए अपने जीवन को जिए, ये हम ठान लेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। 1 मिनट मौन होकर, शांत होकर अपने आप को परखे, जांचे और फिर एक बार इस प्रभु से कहें कि परमेश्वर, मेरे जीवन को तो परख, मेरे जीवन, मेरे स्पिरिचुअल मीटर में पिता अगर कहीं कमी है तो मुझे इसको सहायता कर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ಇನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದು ನಾನಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನೆನ್ನೋಳು ಜೀವಿಸುವ. ಇನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದು ನಾನಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನೆನ್ನೋಳು ಜೀವಿಸುವ. ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಯೇಸು ಎನ್ನೋಳ್ ಜೀವಿಸುವ. ಇನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದು ನಾನಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನೆನ್ನೋಳು ಜೀವಿಸುವ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಮಹಾರೋಗದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ನೀಡಲಾರದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನೆ, ನೀತಿಯ ಜೀವಿತ, ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡು. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನೀನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್. Praise the Lord. ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು. नमदो भानुवार आराधने, हमारी आराधना जो है इसी तरह से संडे के दिन 11 बजे चलाई जाएगी यूट्यूब के माध्यम से, और बुधवार की आराधना जो है 8 बजे फेसबुक लाइव से प्रारंभ हुई है। हमारे बीच में कई हमारे जवान हैं और जो हमारे थियोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं जो परमेश्वर की सेवा में जाना चाहते हैं, वे लोग परमेश्वर के वचन में हमें अगुवाई करेंगे बुधवार के दिन। सुकृपया इन सारी बातों को याद रखकर सारी आराधना में आप भाग लेने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ಮದುವೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರತ್ನಪ್ಪ ಕೊಂಡೈನೂರ್ ಎಲೇರಿ ಇವರ ಮಗನಾದಂಥ ದೇವದಾಸ್ ಎಂಬ ಆತನಿಗೂ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇತ್ರಿ ಇವರ ಮಗಳಾದಂಥ ರೀತು ಎಂಬ ಆಕೆಗೆ ಇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಿವಾಹವು ದಿನಾಂಕ 14 ಮೇ 2021 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ಧಾರಾವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರುವಂಥದ್ದು 2ನೇ ಸಲ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. 2ನೇ ಮದುವೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ರಾಮಯ್ಯನೂರ್ ಇವರ ಮಗನಾದಂಥ ಅನಿಲ್ ಎಂಬ ಆತನಿಗೂ, ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್ ಸಿಂಗಾರಪ್ ಇವರ ಮಗಳಾದಂಥ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬ ಆಕೆಗೂ ಇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಿವಾಹವು ದಿನಾಂಕ 12 ಮೇ 2021 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ಧಾರಾವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಅಭ್ಯಂತರವಿದೆಯಾದರೆ ನೀವು ಲಿಖಿತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲದಿದೆಯಾದರೆ ಮದುವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. आइए हम प्रार्थना करेंगे। फिर एक बार प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हुए हमारे जीवनों को एक नई दिशा देकर आप चलाने के लिए, और जो कुछ भी हम आपके लिए बेटों को अर्पण करेंगे इसे आप आश्रित करने के लिए, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। ये देव्यावाद प्रीतिगे ನಬಾದಲೇನು ಕೊಡುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಯೋ ಏನು ಸಾಲದು. ಆಮೆನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೇಕದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್.
Praise the Lord and God bless you all. Amen.